So today we learn how to write electronic configuration, and the child who will not be able to write the electronic configuration, he or she is going to face lot of problem in coming chapters. So ये सभी को अच्छे से सीखना है, बहुत ही आसान सी बात है यहाँ पर. So to write the electronic configuration in an atom, one order of increasing energy has been suggested by Aufbau. There is a scientist called Aufbau. He arranged the shell subshells in increasing order of their energies as per following order. This order is new for you. You will learn automatically when you will learn electronic configurations of the elements. No need to cram it. You will automatically learn it. 1s2, what is S here, what is 2 here, that I will explain you. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, and 7p6. See, this S, this P, this T, this F, these are called subshells. This 1, 2, 3, 4, 5, जो नंबर पीछे लिखा होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में 6, 7, it represents the shell or orbit. As you can see, in S subshell, maximum 2 electrons can be accommodated. In F shell, maximum 14 electrons can be accommodated. In D subshell, maximum 10 electrons can be accommodated. In P subshell, maximum 6 electrons can be accommodated. Means this number is representing the number of electrons in a particular shell. Particular subshell. S, P, D, F are the subshells. In S subshell, maximum 2 electrons can accommodate. In P subshell, maximum 6. In T subshell, maximum 10. And in F subshell, maximum 14 electrons can be accommodated. I will show how these electrons are oriented in the subshell. If I talk about S subshell, in F subshell, maximum 2 electrons can be accommodated. 1 electron, this is the second electron. In P subshell, there are total 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is about P subshell. In this way, we will represent the electron in the P subshell. Now, in D subshell, how many electrons are there? 10. Maximum in D subshell, 10 electrons can be accommodated. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. This is about D subshell. And can you tell me how many electrons will be accommodated in F subshell? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14.
दिस इज अबाउट एफ सबशेल। ये जो आप देख रहे हो कि एस सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। Subshell is further divided into orbitals. In p subshell there are, very good, 3 orbitals. In d subshell there are 5 orbitals. In f there are 7 orbitals. क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन अ p orbital? How many electrons can exist in a p orbital? What should be the answer? 6. ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, p ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल तो किसी का भी हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल ये हो गया पूरा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ f ऑर्बिटल? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में तो एक ही 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे f का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो। अगर मैं ये पूछता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how would be the, what would be the maximum number of electrons in a f subshell? The 40. In d subshell then 10. In p subshell then 6. और अगर s subshell हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने से पहले, जितनी शेल होंगी उतनी ही नंबर में सबशेल परमिटेड होगी। इन एन एटम द नंबर ऑफ सबशेल्स will be equal to the shell number. For example, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में केवल एक ही सबशेल परमिटेड, दैट इज 1s। अगर हमारे पास सेकंड शेल है तो ओनली 2 सबशेल्स आर परमिटेड, 2s and 2p। अगर हमारे पास थर्ड शेल है तो 3 सबशेल्स आर परमिटेड, 3s, 3p एंड 3d। भले ही 3d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, वो हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितना भी नंबर ऑफ शेल होगा उतने ही नंबर में सब शेल्स होनी हैं। जैसे अब हम बात करें n इज इक्वल शेल इज 4, तो फोर्थ शेल में कितनी सब शेल्स होंगी? 4 होंगी। कौन कौन सी सब शेल्स देखिए, 4s, 4p, 4d, 4f। ये यहाँ क्यों लिखा अभी बात करूंगा बाद में। मान लीजिए फिफ्थ शेल है तो कितनी सब शेल्स होंगी? 5 सब शेल्स होंगी, 5s, 5p, 5d, 5f, और जो एक आपको नहीं दिख रही है 5g, वो भी पॉसिबल होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें 118 जो हमारे पीरियड टेबल में आज की तारीख में एटॉमिक नंबर है मैक्सिमम, उसको लिखने के लिए सफिशिएंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5g का जिक्र नहीं किया है। राइट, तो 2-3 बातें आपकी समझ में आई। ये जो नंबर पीछे लिखा हुआ है 1, 2, 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, ये शेल का नंबर है, ये बताएगा कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये 4 सबशेल पॉसिबल है, s, p, t, f, g भी हो सकता है, एंड the number of subshell will be equal to the number of shells। जैसे फर्स्ट शेल है तो एक सबशेल परमिटेड है, सेकंड शेल है तो 2 सबशेल परमिटेड है, थर्ड शेल है तो 3 सबशेल परमिटेड है, फोर्थ शेल है तो 4 सबशेल परमिटेड है, 5 शेल है तो 5 सबशेल परमिटेड है। Maximum electron in a s subshell can be 2, in p maximum electrons can be 6, in d maximum electron can be 10, and in f maximum electrons could be 4। s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, d में 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे और f में 7 ऑर्बिटल्स रहेंगे।
तो मैं जो कल आपसे बात कर रहा था, आपका जो स्कूल है वो तो शेल है, आपका जो क्लास है, आप आपके स्कूल में तो नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस है, मान लीजिए आप 11th क्लास में हैं, तो वो हो गई आपकी सब शेल। और जो आपका सेक्शन है क्लास में, 11th के कई सेक्शन होंगे, 11th ABCD, तो मान लीजिए आपका सेक्शन 11 A है, तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल। और आपका रोल नंबर कितना है, 1 से 15 तक में है या 16 से 30 तक में है? वो हो गया इसका ओरिएंटेशन। वेरी गुड। क्योंकि मान लीजिए आपके पापा जो हैं आपको लेने गए स्कूल से, और उन्होंने रिसेप्शन पे बताया कि भाई ऐसा है, मेरे बच्चे को बुला दीजिए, तो वो शैल में तो पहुंच गए, लेकिन आपको ना मिले उन्हें अभी। तो भाई रिसेप्शन पे जो भी रिसेप्शनिस्ट होगी वो पूछेगी पापा से, भाई बताइए क्लास कौन सा है बच्चे का, तो बताएंगे भाई क्लास 11 में बच्चा है। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन सेक्शन कौन सा बच्चे का वो ये भी जानना चाहेगी। तो कहेंगे भाई ये तो मुझे पता नहीं, अभी मम्मी से फ़ोन करके पूछ के बताता हूँ। ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम यही रहती है, गार्जियंस को पता नहीं होता बच्चे का सेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो उन्हें पता चल गया, भाई मम्मी से फ़ोन करके पूछा 11th A में है, लेकिन हुआ क्या, 11th A के जो बच्चे थे उसमें से आधे तो चले गए फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करने, और आधे पहुंच गए केमिस्ट्री लैब में। तो पापा को तो रोल नंबर पता नहीं था, तो वो फिर मम्मी को फ़ोन करेंगे कि भाई रोल नंबर कितना है, तो बताएंगे भाई इसका रोल नंबर क्लास में 18 है, यानी कि वो 18 वाले बच्चों के साथ केमिस्ट्री लैब में होगा। तो ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और उसका ओरिएंटेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे देखिए, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं अपवर्ड क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यानी कि 1 to 15 बच्चे जो वो कौन से वाले हैं, क्लॉकवाइज वाले हैं, और 16 to 30 वाले कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस हमें ये क्वांटम नंबर्स ये बताएंगे, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इनका EC कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमें ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया आउटबाउंड सीरीज कहलाती है ये, जिसमें हमने शेल को, सब शेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखा हुआ है, और कभी भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमें लोएस्ट एनर्जी सब शेल से ही स्टार्ट करना होगा, राइट। जैसे यहाँ पर जो 1s की एनर्जी है वो कैसी है, लीस्ट है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करेंगे किसी भी एटम में, तो हम 1s से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा एनर्जी 1s की है। जब ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, देन वी फिल इलेक्ट्रॉन इन 2s। जब 2s पूरा भर जाएगा तो फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p भर जाएगा, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d, देन 5p, देन 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p की एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे किसी भी एटम में, so we start with the lowest energy level. This is called Aufbau principle or Aufbau rule. The filling of electron in an atom will start with the lowest energy level. अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे बेटा? किसे किसे Aufbau principle को हाँ कर सकते हैं। नो, आप ऐसा बताएंगे, filling of electron in an atom start with the lowest energy level. राइट। अब मैं देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं जो फर्स्ट मेंबर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, उसको मैं ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1 ही है। तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 1s से। तो इट इज 1s1। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें तो केवल एक ही फिल करना है, तो 1s1। नाउ वी गो फॉर हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर 2। लोएस्ट एनर्जी सब शेल से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट एनर्जी शेल से स्टार्ट करेंगे 1s2।
मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भर दिया आपने। करेंगे स्टार्टिंग 1s से। नाउ द थर्ड मेंबर इज लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लोएस्ट एनर्जी लेवल से, 1s2 से स्टार्टिंग करेंगे। 1s2, अब ये 1s2 फुल्ली फिल्ड हो गया, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो 1s2 और 2s1, एक ही तो बनना है। 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। एक चीज और सीखेंगे हम, इससे हम बोलते हैं कोर कॉन्फ़िगरेशन, जो अब सीखने वाले हैं। 1s2 की जगह हम नोबल गैस यूज कर सकते हैं। नोबल गैस कौन है यहाँ पर? हीलियम। यानी कि हम जब लिथियम का EC लिखें तो 1s2 की जगह हीलियम लिख सकते हैं, क्योंकि 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का है। तो हीलियम 2s1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये कहलाता है कोर कॉन्फ़िगरेशन। कोर कॉन्फ़िगरेशन में केवल आप जो आउटर मोस्ट शेल है, कोर शेल है, सेकंड शेल तो आउटर मोस्ट है, उसका EC शो कर रहा है। बाकी आपने नोबल गैस की हेल्प ले ली। अब लिथियम के बाद कौन आएगा आपके पास? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको। स्टार्ट वहीं से करोगे, 1s2। अब किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2s में। 2s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो आ गया आपका 2s2। फिर हम बात करेंगे बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं आपको, 1s2, 2s2। अब भाई 2s तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, अब 2s में और इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते ना, 2 आने थे वो आ गए 2s2। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द 2p सबशेल, सो इट इज 2p1। आ सकते हैं मैक्सिमम 6, हमें तो केवल एक ही चाहिए था, एक ही फिल करना था, 2p1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कोर कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखेंगे, 1s2 की जगह क्या लिख लें? हीलियम। हीलियम 2s2 2p1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1s2 की जगह तो हीलियम आ गया और 2s2। अब हमारे पास कौन आ गया? एटॉमिक नंबर 6 कार्बन आ गया। जरा आप बेटे बताओ कैसे लिखें कार्बन का? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1s से करेंगे। बोलिए, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलो बेटा। 1s2, वेरी गुड, वेरी गुड। 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2p2। मैक्सिमम 60 तो करने हैं, 2 2 4 2 6। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कोर कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ही लेंगे। वेरी गुड। जरा आप बताइए एटॉमिक नंबर 7 का बताओ जरा। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का EC बताओ आप। वेरी गुड, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वेरी गुड, 2p3। सब लोग एग्री हैं इनकी बात से? और इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे वो भी बताओ जल्दी से बेटे। हीलियम, यस, वेरी गुड, 2p3, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा आप बताओ बेटे, रुद्र, योगेश, सॉरी योगेश बताओ, भावना को समझो, बोलो। वेरी गुड, 2s2, कोई नहीं, भावना समझ गया। और 4 आ जाएंगे, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं टीम में, हमें तो केवल 4 ही भरने हैं। और इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन भी बता दीजिए। यस, ये ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जरा दिवी आप बताइए, नाइट्रो इसका फ्लोरीन का बताइए, एटॉमिक नंबर 9 का बताओ बेटिया। सर 1s2 2s2 और 2p5। वेरी गुड, 2s2 2s2 और 2 2p1, वेरी और गुड। He 2s2 2p5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का बताओ आप। नाम बोल रहा हूँ आपका, शशांक। हाँ बोलो। 1s आगे बोलो। 2
वेरी गुड। मैक्सिमम 10 करने में 2 2 4 6 10 भाई 6 तो आ ही सकते हैं पी में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया हमें। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, हीलियम 2p6। जनरली अवॉइड करते हैं जो नोबल गैसेज है उनका इसी कोर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, अभी एटॉमिक नंबर बढ़ जाएंगे काफी, तो कहाँ से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4s3। तो इतना लंबा कहानी कहाँ लिखेंगे, नोबल गैस की हेल्प लिखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अभी आप देखेंगे। चलो बेटिया आप फिर से बताओ एटॉमिक नंबर 11 का बताओ। नाम क्या है आपका? यशी। हाँ यशी बताओ अभी। 1s2 वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब 2p6 तो 10 होगा बेटे यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ तो 10 तो हो गए हमारे, पढ़ने कितने हमें फिल करने 11, तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। सब होशियार होगा, वेरी गुड 3s1। अब थोड़ा सा यशी दिमाग लगा के कोर कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कोर कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखते हैं तो नोबल गैस स्पीशीज को यूज करते हैं, ये नोबल गैस है। और यहाँ कौन है नोबल गैस? अब नियॉन, वेरी गुड, बताओगी? बताओ, वेरी गुड, Ne। आपने 1s2 2s2 2p6 के लिए क्या यूज कर लिया, पूरे के लिए नियॉन यूज कर लिया। केवल नोबल गैस स्पीशीज यूज करते हैं कोर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। हाँ नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब 3s1। लगभग सभी को ये बात समझ में आने लगी है। हाँ बेटा, ये सब आपके नोट्स में है, एकम एक इसी आपके नोट्स में है। तो इस तरह से आ गया आपके पास। एक मैं और ले रहा हूँ एग्जाम्पल मैग्नीशियम का, ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ गैप होंगे मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, घर से लिखने के लिए देता हूँ, लेकिन बच्चे 11th के बहुत बिजी हो जाते हैं, तो आपको वहाँ गैप मिलेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आप उन गैप को आज घर जाके फिल कर सकते हैं। तो 12 mg, जरा आप बताओ जल्दी से। 1s2, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात है। और कोर कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। Ne, वेरी गुड, हाँ 3s2, 3s, है ना। चलिए मैं कुछ यहाँ रब कर रहा हूँ, उसके बाद फिर और आगे बात करता हूँ आपसे मैं। आप लोग फिर भी बहुत जल्दी समझ गए, बच्चे टाइम लेते हैं समझने में, लेकिन फिर भी आपसे जो भी पूछा गया आपने बहुत अच्छा आंसर किया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी चीज़ें और भी आपको बतानी होगी, आंसर करना होगा, इससे बात करनेगी नहीं, ये तो सिंपल सी चीज़ें थी। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आ गया था बच्चों? हाँ क्या आ गया था? हाँ सर 13। 13 आ जाएगा बेटे, 13 होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का, ठीक है। जरा आप बताओ योगेश, एल्यूमिनियम का बताएं। 1s2, कोई बात नहीं, भावना में समझ जाता हूँ बच्चों की। 2s2, वेरी गुड, 2s6, 2p6, ठीक है, और 3s2। वेरी गुड। ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए 3s2 तक, है ना। अब इसमें और ज्यादा तो नहीं आ सकते। नाउ यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, वेरी गुड 3p। फोर कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए योगेश। वेरी गुड, यहाँ तक तो एनी हो गया ना हमारे पास, वेरी गुड। 3, हाँ बोलो, 3s2 और 3p1 जी। नहीं कर सकते, केवल नोबल गैस की हेल्प लेनी है। मैं आपकी भावनाएं समझ गया, ये और ज्यादा शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं। इनका कहना ये सर ये जो 12 नंबर है ना, यहाँ तक तो मैग्नीशियम हो गया, तो मैं इसको ऐसे देख दूंगा। सर देखो मैं कितना होशियार हो गया,
मैग्नीशियम 3p1 नहीं, ये होशियारी नहीं है। कोर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो आउटर मोस्ट शेल थर्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये गलत था आपका। तो इसी बात पे आप ये आंसर करोगे जरा एटॉमिक नंबर 17 Cl का। थोड़ा कूद गए आगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हाँ 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12 यस 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, हमें तो केवल 5 ही और करने हैं ना। ये बताना चाह रहे थे आप, जरा कोर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। वेरी गुड 3s2 3p5 3s2 3p5। यहाँ तक तो हम निकल गए ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये नियॉन हो गया बेटा। चलिए अब आएगा हमारे पास 18 आर्गन, इसका मैं आपको बता देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आ गया साहब आर्गन। और इसका कोर अगर लिखना हो तो नियॉन 3s2 हाँ 3p6 वेरी गुड। नोबल गैसेस में सबका ऑक्टेट कंप्लीट ही होता है। देखिए सबके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 और p में 6। ये बात हो गई, ठीक है। दिव्य बेटे आप जरा एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम के बारे में बताइए, इसका इसी बताइए। दिव्य आप बताइए। So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। वेरी गुड। जब आपने यहाँ तक भर लिए इलेक्ट्रॉन, ये तो 18 हो गए ना यहाँ तक। नाउ यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट शेल 4s2। कितना आ गया 4s1। वेरी गुड। इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। Sir argon वेरी गुड 4s1। वेरी गुड। आर्गन, अब हम देखो नेक्स्ट स्पीशीज आ गई ना हमारे पास आर्गन, तो हम इसकी हेल्प ले लेंगे। तो आर्गन वेरी गुड। और यहाँ तक तो आर्गन हो गया आपका। नाउ व्हाट इज लेफ्ट 4s 18 और 119 इलेक्ट्रॉन्स। सबको बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। मैं इसके आगे की इसी की बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। जिसको भी कम समझ में आएगी थोड़ा सा, तो आज इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर दैट इज 20। 20 एटॉमिक नंबर आपने मुझे किसका बताया था? कभी बताया था आपने? मुझे याद आ रहा है किसका होता है? कैल्शियम का। तो आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक नंबर सभी को याद रहने चाहिए। एक्सपेक्टेड तो और भी है, लेकिन आज की तारीख में कैल्शियम तक आप माफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कैल्शियम का भी। चलो तुम बता दो। 1s2 वेरी गुड। 2s2 वेरी गुड। यस यस बहुत अच्छा आपने बताया। और कोर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्गन। हाँ बोलो बेटा। 4s ठीक है। अब हम कुछ एडवांस चीज सीखने वाले हैं। 20 तक तो ठीक था हमारा, अब थोड़ा नई चीज सीखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम। जी हाँ, ये आपके लिए नए हैं क्योंकि आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन कभी इन एलिमेंट से हुआ नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इन्हें हमने थर्ड ग्रुप में रखा हुआ है। स्कैंडियम कहाँ पर है? 21 स्कैंडियम। ये ट्रांजिशन मेटल है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा मैं आपको अभी यहाँ तो पहुँच नहीं पाया मैं, कोई बात नहीं, अभी आप 21 स्कैंडियम का सीखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग तो वहीं से करनी है भाई। 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ तक कितने हो गए? 20 हो गए। अब आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 3d1। ये बात बिल्कुल सही है कि 3d में इलेक्ट्रॉन 4s की फिलिंग के बाद भरा जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम तो
जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो थर्ड शेल के साथ ही रखे जाएंगे। भावना ये है कि भले ही इलेक्ट्रॉन 3D में 4s के बाद भरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के साथ ही रखे जाएंगे। यानी कि ये इसी अगर हमने ऐसा लिखा अगर तो वो गलत माना जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। और अभी बोलो नहीं, अभी मैंने सिखाया नहीं आपको। ये इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे फिर हम, आर्गन 3d1 4s2, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के साथ ही आएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने जो कभी जो है मतलब सिनेमा देखने गए, पिक्चर देखने गए, और एक बंदे को जो टिकट था, ये यहाँ पे 4 रो है, एक बंदे को जो टिकट था उसने पीछे वाली सीट का ले लिया आपसे पहले, लेकिन आपको जो टिकट इशू हुआ वो कौन सा हुआ, थर्ड। आप थोड़ा लेट हो गए थे और थर्ड में एक सीट बची हुई थी। तो आप ऐसा नहीं है इस फोर्थ वाले रो में जाके बैठ जाएंगे, जिस जिस रो का आपको टिकट है उसी रो में जाकर के आप बैठेंगे, भले ही आप फोर्थ वाले के बाद पहुंचे हो, बैठेंगे थर्ड वाले नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3D सबशेल की एनर्जी है वो 4s से ज़्यादा है। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमने भरा है, इससे हमें ये पता चल रहा है, आप लोगों ने हमें बताया था कि सबशेल 3D है, उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s के बाद 3D में जाएगा। लेकिन जब EC लिखेंगे तो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के साथ ही आना चाहिए। तो करेक्ट EC इसका ये है। और भाई अभी मैं कहाँ ले रहा हूँ डाउट आपके, मुझे समझाने तो दीजिए आप, मैं आपके सारे डाउट लूँगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। स्कैंडियम के बाद मैंने ले लिया टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, ये एटॉमिक नंबर 22 टाइटेनियम है। ये मेंबर सब आपके पास पहली बार आ रहे हैं, टाइटेनियम, राइट। इसका इसी जरा आप यशी बोलो बेटे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब गलती ये मत करना कि पहले आप 3D में भर दें, भरेंगे पहले 4s में ही, कितने हो गए 20। अब जब 3D वाला लिख रहे हो तो कितने और बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, एक बढ़ गया तो क्या हो गया 3d2। जैसे ही बोलने थी 3s2 3p6 3d2, अगर आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे भी, यहाँ तक रुकेंगे। 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले, फिर 3D में जब भरोगे तो यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही इसी इन्होंने बताया है। जरा कोर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। आर्गन, वेरी गुड। हाँ, 3d2 और 4s, 3d2 4s2। मुझे लगता है कुछ बातें आपकी समझ में आई हैं। मैं एक आध बच्चे से और कंफर्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपके डाउट लूँगा। फिर मालूम है जब तक डाउट की नौबत ही नहीं आएगी आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैं इस बार एटॉमिक नंबर कितना आएगा, चलो भाई योगेश एटॉमिक नंबर 23 बताओ तुम वेनेडियम का, इसका सिंबल है V, बोलो। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, वेरी गुड, 3p6 4s2, वेरी गुड। 4s2 और 20 हो गए, 3d3। कोर कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। सर 3d3, पहले आर्गन ले लूँ। हाँ 3d3 हाँ, 4s2। 3d3 4s2, सब लोग एग्री इनकी बात से, मैं भी एग्री हूँ, ठीक है। अब जो बात है वो थोड़ा अलग सी आ जाएगी, वो हम सीख लेते हैं। दिव्य जरा एटॉमिक नंबर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है हमारे पास, 24. हाँ 24 आ रहा है, वेरी गुड।
24 मैं आपको बताता हूँ। 24 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास रहता है क्रोमियम का, और ज़्यादातर आपसे एग्जाम में क्रोमियम का ही इसी पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दीदी जरा बोलो बेटे। So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, वेरी गुड। 3d4. 3d4 और 4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगी आप? Argon यस, 4s2, 3d4. आर्गन 3d4 4s2। आप सभी बच्चे लगभग इनकी बात से एग्री हैं, लेकिन आपको ये सीखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है स्क्रीन पर वो गलत है। ऐसा इसलिए है दीदी, आपने जो सीखा दीदी आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपकी इसमें गलती नहीं है। अभी मैं एक नई चीज सिखा रहा हूँ आपको, वो सीखना है आपको। एक्चुअल में 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि अगर इस तरह का D4 1 2 3 4 5, D4 का मतलब ये वाली कंडीशन है 1 2 3 4। ये D4 को मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा हूँ। ये पार्शियली फिल्ड वाली कंडीशन है दीदी। इलेक्ट्रॉन डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में तो भी पार्शियली फिल्ड, 2 है तब भी पार्शियली फिल्ड, 3 है तब भी पार्शियली फिल्ड, 4 है तब भी पार्शियली फिल्ड, 5 है तो हाफ फिल्ड, 6 है तो पार्शियली फिल्ड, 7 है तो पार्शियली फिल्ड, 8 पार्शियली फिल्ड, 9 पार्शियली फिल्ड और 10 फुल्ली फिल्ड। तो जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, वेरी लेस स्टेबल। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन आता है D4 वाला, तो इन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एटम की कोशिश रहती है कि किसी तरह से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम कैसे हो जाएं, हाफ फिल्ड हो जाएं। हाफ फिल्ड कैसे होंगे, मोर स्टेबल। भाई यूनिवर्स में हर स्पीशीज चाहती है कि स्टेबिलिटी आ जाए। आप लोग पढ़ रहे हो, फिर पढ़ने के बाद जॉब मिल जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, मतलब ये माँ बाप भी मान करते हैं कि आपका सेटलमेंट हो जाए बढ़िया से। सेटलमेंट तो ऊपर जाके होता है खैर इंसान में। तो ये हाफ फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हर स्पीशीज की कोशिश रहती है कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो यहाँ पे D4 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, पार्शियली फिल्ड, और ये D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड, ज़्यादा स्टेबल। तो क्रोमियम में जैसा आप ये इसी देख रहे हो आर्गन 3d4 4s2, तो इसमें आप देखेंगे कि जो D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 में कन्वर्ट हो जाता है, आर्गन 3d5, और ये रह गया 4s1। यानी कि इस D सबशेल ने एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया 4s सबशेल से। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी कैसी है, हाईली कंपेरेबल है। कंपेरेबल इन द सेंस क्लोज है। जैसे मान लीजिए ये जो घर है ये गुप्ता जी का घर है और ये शर्मा जी का घर है, दोनों पड़ोसी हैं। अब गुप्ता जी के यहाँ कोई मेहमान आ गया और उनके घर में जो शुगर थी वो खत्म हो गई, तो भाई बुरे वक्त में पड़ोसी काम आते हैं। तो जो गुप्ता जी की मिसेस थी वो शर्मा जी के गई, बोले भाई ऐसा है हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो आप अगर एक बाउल शुगर हमें दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी, शाम को गुप्ता जी आएंगे तो मैं ये शुगर आपको वापस करा दूंगा। भाई मरता क्या नहीं करता पड़ोसी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो शर्मा जी की जो वाइफ थी उन्होंने एक बाउल शुगर जो थी वो इनको दे दी। तो वही किया यहाँ पे। ऐसा क्यों हो पाया, गुप्ता जी कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सक्सेना जी रह रहे हैं उनके घर जाके मांगेंगे 3 घर छोड़ के, नहीं। जिनकी एनर्जीज क्लोज हैं, जिनकी छत मिली हुई है, वही आपस में इंटरचेंज इलेक्ट्रॉन का आसानी से कर सकते हैं। तो 3d और 4s की एनर्जी बहुत क्लोज है, इसीलिए जो 4s है
उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक डी में शिफ्ट हो जाएगा, और डी कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, जो कैसे है, ज्यादा स्टेबल है। इस तरह से क्रोमियम का जो करेक्ट ईसी है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3d5 4s1, ना कि 3d4 4s2। अब आप कह सकते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन 3p से भी ले सकते थे। अब देखो यहाँ जब ये 3d5 आ गया तो ये वाली कंडीशन आ गई, डी भी हाफ फिल्ड हो गया और 4s जो है वो भी हाफ फिल्ड हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, आधा उसमें भी। लेकिन अगर पी को छेड़ते, पी को डिस्टर्ब करते, तो यहाँ क्या रह जाता, 3p5 रह जाता, तो वो कैसा होता, पार्शियली फिल्ड, वो हाफ फिल्ड नहीं होता। तो इसलिए 4s से ही लेना एनर्जी जो है समझदारी थी, और इसीलिए 3d ने जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे ले लिया, 4s। तो वैसे तो हमारी बुक में ऐसा लिखा आता है कि 3d4 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कुछ एलिमेंट में 3d4 नहीं रहता, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे जब हायर आप एटॉमिक नंबर वाले इसी लिखेंगे तो 3d4 भी एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन आज की तारीख में नहीं कर रहा है क्रोमियम के केस में। अब शाम हो गई, गुप्ता जी वापस आ गए। अब क्या हो जाएगा, इसी आर्गन, और सॉरी जिंक कह रहा हूँ मैं, सॉरी मैंगनीज, वेरी सॉरी, एटॉमिक नंबर 25 इज ऑफ मैंगनीज। इसका इसी लिखेंगे तो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। यानी कि जब गुप्ता जी शाम को वापस आ गए तो गुप्ता जी ने वो शुगर फिर शर्मा जी को वापस कर दी, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन दिया था, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पहुंचेगा, 4s में पहुंचेगा, ना कि 3d में यहाँ भर दोगे। वो तो 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया गया, और ये इसी क्या हो गया, 3d5 4s2। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। तो क्रोमियम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम वगैरह में ज्यादातर क्रोमियम का केस पूछा जाता है। अभी मैं कम से कम 3 बार और क्रोमियम का इसी लिखना सिखाऊंगा आपको, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्पीशीज ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26 आयरन। आप बेटे बताओ 26 आयरन का इसी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 yes 4s2 वेरी गुड 3d6। तो मैं इनकी भावनाएं समझ गया और मैं केवल कोर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। दिस इज आर्गन 4s2 और 3d6, इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा ना डी में, 4s में 2 आ सकते हैं, वो आ गए। अब कहाँ फिल करेंगे, हम डी में करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने बताया हमें। और हमारा क्या नाम है अभी, हर्ष। मेरे संग एक प्रॉब्लम है, बच्चों के नाम में जरूर बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, तो आप सबको ये कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। मुझसे बच्चों की नाराजगी रहती है, सर आप हमारा नाम भूल गए। जनरली होता क्या है, जैसे बच्चे कहीं घूमने गए नैनीताल में और वो अचानक से मुझे मिल गया, वो सर आपने पहचाना था, इस वजह शक्ल तो पहचान लोगे, और वो वहाँ जाके दूसरा मेरा नाम बताइए। अब होता है अपने वाइफ के साथ, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, बोले तो कैसे सर हैं, वहाँ नाम ही नहीं जानते। तो मैं पहले से एक्सक्यूज ले लेता हूँ सभी लोगों से, मैं जनरली बच्चों के नाम याद नहीं रख पाता, तो इसलिए मुझे प्लीज़ इस मामले में एक्सक्यूज़ करें। और मैं अगर बार बार पूछ रहा हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद हो जाए। एक आध बार ऐसे हुआ, एक आध बच्चे को मैंने बता दिया तो भाई वो तो बड़ा ही खुश हुआ, तो झील में कूदने को तैयार। बोले सर आप तो मना करते थे, आपको तो मेरा नाम याद रहा। मैं कहा बस झील में जा मत, मुझे याद आ गया, बस ये तुम्हारा गुड लक है। तो अभी नेक्स्ट के लिए चलेंगे, एटॉमिक नंबर 27। आयरन के बाद हमारे पास आएगा कोबाल्ट। जरा भाई आप बताओ जल्दी से कोबाल्ट का। अब मुझे नहीं चाहिए 1s2 1s2, मैं तो कोर कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा हूँ। क्या होगा सर, आर्गन 4s2 s तो भरोगे, 18 तो यही हो गए ना, और 220 उसके बाद, वेरी गुड 3d7, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा होशियार है।
एटॉमिक नंबर 28, कोबाल्ट के बाद आ जाता है निकिल। ठीक है, आप बताओ। वेरी गुड, सब पर बढ़ जाएगा। पहले 4s में जाएंगे, Yes, sir. गैप छोड़ के रखोगे। आर्गन 3d8 4s2, ठीक लिखा मैंने। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रही है कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्यों मैं आपको ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा था, क्योंकि कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपका एनर्जी, टाइम और ब्रेन कम यूज होता है। ठीक है, दिवी 29 बेटे कॉपर का बताओ जरा। दिवी। Sir, AR Yes. 3D, sorry, AR 4S2 वेरी गुड। 3D9. 3d9, ठीक है। तो ऐसे हमारी बुक में लिखा होता है कि 3d9 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी दिल्ली हमारा गलत हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक बताया, क्योंकि जो D9 वाली कंडीशन है ना, देखिए ये हो जाती है, ये 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 कैसा हो गया, पार्शियली फिल्ड, कैसा हो गया, लेस स्टेबल। और कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो D9 किस में हो जाएगा, D10 में। और D10 कैसा होता है, हाईली स्टेबल। D10 कैसा होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो दिवी इलेक्ट्रॉन किससे लिए जाएंगे, आप बताएंगे, थोड़ा सा हेल्प करो हमारी। कॉपर का सही इसी क्या हो जाना चाहिए दिवी, जो भी आपकी समझ में आया बताइए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए। आर्गन इलेक्ट्रॉन किससे बोरो करेगा देवी, Sir, 4S2. वेरी गुड। 4s से करेगा, Sir, 4S1 3D10. वेरी नाइस। 4s1 और 3d10 ये हो जाएगा, है ना। सर। हाँ बोलो बेटिया। तो जैसे डी में 8 होता है तो वो भी तो पार्शली फिल्ड ही होगा। मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा एग्री हूँ, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा एग्री हूँ। पूछो क्यों, क्योंकि इनका कहना है ये सर D8 है, तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं इधर। अरे भाई, अगर घर में चीनी खत्म हो गई तो चीनी तो मांग सकते हो ना शर्मा जी के यहाँ से। अब ना गुप्ता जी घर में ना चीनी है ना दूध है, गैस का स्टोव, गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया, तो मेहमान को ही ले जाओ ना। तो मेहमान को शर्मा जी के लिए चलते हैं, वही कहेंगे भाई ये मेहमान है आपके यहाँ, आपकी आपको बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो आज ये आपके ही चाय पियेंगे। तो बिटिया, जहां तक एक इलेक्ट्रॉन की बात है, वहां तक तो कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, ये 4s कंप्रोमाइज करने को तैयार है। अब आप इसके सारे इलेक्ट्रॉन मांग लो तो ये कहाँ का, है ना। किसी के पास 2 रोटी है, वो चलो एक खा लेगा। अब तुम उस बेचारे के पास 2 ही रोटी थी, दोनों मांग लो उससे, गरीब से, तो वो भूखा मरेगा क्या। इतनी तो कर्टसी दूसरे मांगने वाले में भी होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन की बात है तब तक तो जो 4s था शरीफ बना रहा, और जब मांगोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास तो 8 है पहले से, तुम्हारे पास तो 8 है, उनसे काम चलाओ। हमारे पास 2, तुम्हें हमारे पास 2 गुण लग रहे हैं, अपने पास 8 गुण नहीं लग रहे हैं। तो ये बात है, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो वो डोनेट करने की पोजीशन में रहेगा। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, 4s 0 ना हो जाए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन 4s के वो डोनेट कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक इलेक्ट्रॉन तक ठीक है, ठीक है देवी। यस सर। तो मेहमान को लेके नहीं जाना है, बाउल तक ही ठीक है। ये एक बाउल शुगर जो है लिया है, ये नहीं कि मेहमान को लेके बोले भाई हमारे यहाँ मिल्क भी खत्म हो गया और ये गुप्ता जी भी नहीं है तो मंगाऊं किससे, तो इसलिए मैं मेहमान को लेके आपके यहाँ आ गई, वो नहीं चल पाएगा। तो कॉपर का ईसीपी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपने बहुत ही अच्छी क्वेरी पूछी दीदी, इससे इन बच्चों को और थोड़ा क्लियर हुआ। ऐसी क्वेरीज हमेशा पूछा करिए आप सब लोग, जिससे कि जो भी डाउट हुआ करे वो क्लियर हो जाए करे, जिससे कि कोई टीचर अगर बाद में कोई पूछता है, कोई बच्चा अगर बाद में पूछता है, तो उसका आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाओ और मेरी भी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे। ठीक,
तो ये एटॉमिक नंबर 29 कॉपर की बात हो गई। अब हम एटॉमिक नंबर 30 जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बताओगे? AR, 3D, वेरी गुड, 4S, 4S2, वेरी गुड। 3D, 10, 10 सब लोग एग्री होंगे इनकी बात से, क्योंकि भाई जब गुप्ता जी आ गए तो वापस तो करनी है। वो बाउल शुगर गलत क्यों लिखेंगे? हाँ, किस खुशी में? अरे एक इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधार लिया था भाई, वो तो वापस कर दे। अभी तो गुंजाइश है यहाँ पे 4s में, 4s1 है ना बेटा। नेक्स्ट इलेक्ट मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है, उधार एक बार ही मिलता है बेटा। अगर आप उधार वापस नहीं करोगे दोबारा उधार मिलेगा नहीं। और इनका तो जन्मों जन्मांतर का है वास्ता। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऐसा वो पाकिस्तान के लिए कहा करते थे कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखिए, आप सब कुछ बदल दोगे लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो कहीं हद तक वो ठीक भी थे। तो इसलिए ये पड़ोसी जो है 4s है, इसी के संग निभा के चलना है। तो सुबह एक इलेक्ट्रॉन लिया था, शाम को वापस भी करना है। ठीक है, ये नहीं आप 4s इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया, बोला भाई पी भी तो बराबर है, पी से ले लेंगे, तो पी तक तो बात पहुंची नहीं है पहले तो नहीं। स्टेबल हो जाएंगे तभी करेंगे वापस। जी जी, वैसे भी ना, वैसे भी इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भरोगे ना आप, तो जब तक डी फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाएगा तब तक आप पी की तरफ कैसे मूव कर सकते हो? ठीक है, जी सर। मुझे लगता है काफी हद तक बात आपको क्लियर हुई है। और थोड़ा और आगे बात कर लेंगे, यानी कि क्रोमियम का और कॉपर का आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जब एक ये दो एक्सेप्शंस पढ़े तो बच्चों को लंबे समय तक वो याद भी रहता है। एक आध और देख लेते हैं, फिर बाकी बातें कल रहेंगी आपके सामने। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास है, कितना आ गया? 31। आप में से कोई बच्चा बताए 31 किसका एटॉमिक नंबर है? किसका बेटे? गैलियम का, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर गैलियम। हालांकि ये लोग पीरियोडिक टेबल देख देख के बोल रहे हैं, फिर मुझे वेरी गुड बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। गैलियम, यस सर। जी बोलिए। यार AR, हाँ कोई बता दीजिए। DD10, वेरी गुड, 4S2, यस, 4P1, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया। यहाँ तक तो आ ही गए थे 3D10 तक। यस सर। अब कहाँ जाएंगे? 4P में जाएंगे। आ सकते हैं मैक्सिमम 6, हमें तो केवल एक ही बनना था ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एटॉमिक नंबर अब हम बात कर लेते हैं 32। गैलियम का पड़ोसी कौन है? जर्मेनियम, GE। जरा तुम बताओ भाई योगेश। AR, वेरी गुड, DD10, वेरी गुड। 4S3, अब अंग्रेज, सॉरी 2 सर। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। 2 आएंगे। हाँ, 4P2, तो यहाँ तक तो 18 हो गए। ये 10 आपके पास, ये 28 और 2 30 और 2 32। वेरी गुड। जरा दीदी आप बताओ एटॉमिक नंबर 33 का बताइए जरा, कौन सा एलिमेंट हो गया 33 में? 33 एटॉमिक नंबर किसका है? आर्सेनिक का है। ठीक है, आपको मैंने कहा था सभी बच्चों से अपने रूम में पीरियोडिक टेबल जरूर लगा के रखेंगे, सर खाना लेकिन आपने कुछ किया नहीं उसके बारे में। तो आर्सेनिक 33 का बोलिए जरा दीदी। सर आर्गन यस, GD10, यस, 4S2, यस, 4P3। वेरी गुड, है ना। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ एटॉमिक नंबर 35। यशी आप बताओ एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन का रहता है, बोलिए यशी बताइए। आर्गन, यस, 5 देखिए 18 10 28 230 और 535 और 36 आ गया हमारे पास क्रिप्टन। ये भी नोबल गैस है, आप बताओ। AR, वेरी गुड। 3D10, यस, 4P6, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अब
एक आप बताओगे जरा, प्रशांत। प्रशांत आप बताओ हमें एटॉमिक नंबर 37 का बताएंगे बेटे। 37 एटॉमिक नंबर किसका हुआ? ये रहा इधर, रुबीडियम का हो गया। 37 किसका हो गया? रुबीडियम का। बोले AR। चलो मैं लिखता हूँ जो आप बता रहे हो। AR, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही आ सकते हैं, 5s1 और 5s1। आप में से कोई इसे करेक्ट करेगा, क्या गलती हमने की है? यस, ये जो पूरा आप देख रहे हो इसकी जगह आप क्रिप्टन लिख सकते हो सिंपली, ठीक है ना प्रशांत? ये देखिए क्रिप्टन का तो इसी लिखा था ना बेटा ये। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ाना है। अब 4p6 तक तुम आ गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए आप। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5s में जाएगा। तो बताओ भाई प्रशांत क्या लिखें इसकी जगह? क्रिप्टन 36 और 5s1। तो ये गलत है। तो आप समझ गए कोर कॉन्फ़िगरेशन कितना हमें आराम करता है। ऐसा नहीं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसा कुछ करना पड़े हमें, ठीक है? तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने आज नहीं सीखा है, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। तो वो इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखेंगे, तब उनके दिमाग में कोई बात आएगी, ठीक है? मैं आज इतना ही डंडे दे रहा हूँ। आप सभी लोग ईसी की प्रैक्टिस करेंगे, जो नोट्स आपको दिए उसे फेयर करेंगे और अपनी बुक से और ईसी को लिख करके देखेंगे। बाकी बातें आपसे कल होगी। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। गॉड ब्लेस यू।